Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your EVS class. Today date is 12 January 12 January 2021 and I am teaching you chapter number 23. Chapter number 23. Name of the chapter is The Land of India. The land of India. So student, let's do little recapitulation what we have done in our previous videos. So in the starting video I explained you student that India is the seventh largest country of the world. Our country India is the position of our country is the seventh in the world, and I already explained you student that there are seven continents, and the continent in which we are living, that is known as Asia, Asia continent. And even our country is, if you see by population, so the position of our country is second. So after that I explain you that physical divisions of our country. So there are six physical division of our country, that is mountains, then northern plains, desert area, southern plateau, coastal plains and islands. So we have already discussed the mountain range of our country, that when we discuss the mountains of our country, then the world highest mountain range, that is Himalayas, and they are in north. So we have already discussed this, and when we study the Himalayas range, then it is further divided into three parallel ranges, that is Himadri, or you can say the greater Himalayas also, Himachal or middle Himalayas, or Shivalik, or you can say outer Himalayas. Himadri, the height of the mountain, the average height of the mountain in this region is 6000 meter, and which is the highest mountain in the world, that is also in the Himalayas range. And the highest mountain in the world is Mount Everest, and it is in Nepal. And if we are talking about our country, the highest mountain peak of our country is Kanchenjunga. Is it clear? So student, there are three parallel ranges of Himalayas, that is Himadri, Himachal and Shivalik. The temperature in the Himadri region is very cold, because all time these mountains are covered with the snow. All the time these mountains
are covered with the snow, so the temperature is in -degree all the time, and population is also very less in this region, and even vegetation is also very less. पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं. ठीक है. फिर हमने डिस्कस किया था हिमाचल. सो हिमाचल इज, or you can say middle Himalayas, this range is famous for the hill stations. So many hill stations you will find in this region, like Shimla, Nainital, Mussoorie, Darjeeling, Srinagar. Okay. And even you will see thick vegetation in this region. And after that we discuss Shivalik range. So this is the lowest range of Himalayas. This is the lowest range of Himalayas, and this range is very popular due to terrace farming. Stepwise farming is done by cutting the mountains, and it is also popular for sheep rearing. भेड़ पालन के लिए भी फेमस है ये. ठीक है. So these are the things we have discussed in these ranges. Are today मैं just recapitulation करा रहा हूँ बेटा, इसलिए बस एक एक दो दो लाइन बोली है इस टॉपिक पे. अगर फुल एक्सप्लेनेशन है जो प्रीवियस वीडियोस में बताया है वहाँ फुल एक्सप्लेनेशन है. यहाँ बस हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ ली. इसलिए ये मत सोचना अगर आप पहले की 2 वीडियो नहीं देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ने एक ही पॉइंट में पूरा ये कंप्लीट कर दिया. ऐसा नहीं है. इन द प्रीवियस वीडियो detailed explanation of all this given. So after that we discuss what are the importance of Himalayas. They act as a natural boundary and even save us, or you can say protect our country from foreign inventions. They stop the cold airs, cold biting winds coming from northern Asia, and they also stop the rain bearing monsoon winds. That is the reason there is rainfall in different parts of the country, or melting of the Himalayas glaciers provide water to the rivers throughout the year. इनके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था आपसे. जो the rivers which whose origin is from the glaciers means melting of the snow, these rivers are known as perennial rivers because these rivers have water throughout the year because their origin is from the glacier, that is melting of the snow. So and variety of things you will get from the forest, like timbers means wood, medicines, resins, honey, fruits, etc. So and many of the things we will get from the forest. Now after that we start with a northern plains. So first of all, what is the position of the northern plains? So student, when we are talking about the northern plains, तो northern plains lies between मतलब होता है बीच में. जैसे एक सिंपल ले लेते हैं कि 6 और 8 के बीच में क्या होगा? 7. Is it clear? So northern plains lies between the Himalayas and the southern peninsula. ठीक है. साउदर्न पेंसुला इसे इसलिए बोला है क्योंकि इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हेन यू सी दैट द इन नॉर्दर्न पार्ट्स में आप देखोगे सारे माउंटेन्स रेंजेस हैं. ठीक है. और हमारी कंट्री जो है इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड. इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स. ईस्ट में वे ऑफ बंगाल, वेस्ट इज द अरेबियन सी, एंड इन द साउथ इट इज इंडियन ओशन. सो नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज बिटवीन द हिमालयाज एंड द साउदर्न पेंसुला, इसलिए इसे पेंसुला बोला गया है. ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप
and from 3 side it is surrounded by the water. So अब देखो कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर रखी हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर आप हॉर्जेंटल दे स्ट्रेच नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम अबाउट 2400 किलोमीटर. ठीक है, ये कितने फैले हुए हैं? 2400 किलोमीटर. ये इनकी लेंथ है. और वेड्थ कितनी है इनकी? द वेड्थ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज 240 to 320 किलोमीटर. ठीक है, 240 to 320 किलोमीटर इज द वेड्थ गिवन. ठीक है. सो आफ्टर डैट हमने इसमें आपसे ये थोड़ी सी पॉइंट्स डिस्कस कर रखे थे ऑलरेडी कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. ठीक है, तो यहाँ फर्टाइल क्या है? वहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है. दैट इज़ द रीज़न these northern plains are also known as the food bowl of India. That is the reason these northern plains are also known as the food bowl of India, because if we see the production of the wheat, तो I am talking about the whole country, मतलब whole country में जितना भी wheat प्रोडक्शन होता है उसका 70% wheat कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा? नॉर्दर्न प्लेन से. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइस प्रोड्यूस इन होल कंट्री, तो आउट ऑफ दैट 50% ऑफ राइस इज प्रोड्यूस इन द नॉर्दर्न प्लेन. दैट इज द रीजन दीज नॉर्दर्न प्लेन्स आर आल्सो नोन एज द फूड बाउल्स ऑफ इंडिया. ओके, अब देखो थोड़ा आगे डिटेल में आते हैं बेटा. इतनी चीज़ें हम लोग ने थोड़ी बहुत डिस्कस की थी. अब देखो नॉर्दर्न प्लेन जो है इट इज़ क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स. ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो आपका बना है ये 3 रिवर्स से बना है. अब आप लोग सोचोगे नॉर्दर्न प्लेन बना है 3 रिवर्स से, तो मैं एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन कराता हूँ. देखो हमने डिस्कस किया था तुम लोग को जब मैंने नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ाए थे. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जब चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे तब हमने आप लोग से डिस्कस किया था. ठीक है, ये फॉर एग्जांपल वाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंडरस्टैंड कर लो वाई दीज आर वेरी फर्टाइल. ये क्यों बहुत ज़्यादा यहाँ की सॉइल क्यों एलुवियल सॉइल है, एंड वाई दिस सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स. उसका रीज़न क्या है बेटा? जो नॉर्दर्न प्लेन्स इतने ज़्यादा फर्टाइल इसलिए हैं बिकॉज ड्यू टू द रिवर्स, एंड दीज रिवर्स आर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. ये रिवर्स कहाँ से आ रही हैं? माउंटेन्स से आ रही हैं. सो व्हेन यू नो व्हेन द रिवर वाटर फ्लोज दे कैरी लॉट ऑफ माउंटेन सॉइल आल्सो. रॉक पार्टिकल्स है, माउंटेन सॉइल जिसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं. ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं. ये चैप्टर नंबर 12 में भी मैंने बताया था. ठीक है, when these rivers are coming from the mountain they carry lot of rock materials also, and they carry mountain soil. This is known as silt, and this soil is very fertile. अब ये सॉइल क्या है? रिवर के वाटर के संग माउंटेन्स से जब रिवर्स होती आती हैं तो उनके वाटर के संग संग होते चली आ रही हैं सॉइल्स. इज इट क्लियर? और फिर ये जो सिल्ट सॉइल है, पहाड़ों की जो मिट्टी है, ये कहाँ पे सब सेटल्स हो जा रहे हैं? ये कहाँ सेटल हो जा रहे हैं? आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में. इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है. यही रीज़न है बिकॉज ड्यू टू द माउंटेन्स, ड्यू टू द वाटर ऑफ द माउंटेन रिवर्स. बिकॉज जब ये रिवर फ्लो करती हैं तो अपने संग बहुत सी सॉइल भी लेके आती हैं. ठीक है, जो आप ये भी कह सकते हो मिनरल रिच सॉइल. ठीक है, क्योंकि मिनरल रिच सॉइल लेके आती हैं और उसको कहाँ ये लोग डिपॉजिट कर दे रही हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में. इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स में क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब इसी चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे.
नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, इट इज क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है इट इज क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स। ओके, इट इज क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, बुक में आपके इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन बुक में तो डायरेक्ट दे दिया है कि नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल हैं। दिस इज द नेम ऑफ द सिटीज विच आर इन नॉर्दर्न प्लेन्स। बस तो थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स आर नॉट गिवन इन द बुक। सो इफ यू वांट टू नोट डाउन इन योर रफ कॉपी यू कैन राइट इट, क्योंकि एग्जाम में जब MCQ क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल बुक के बीच बीच में से टीचर्स पूछते हैं, तो उस समय अगर ये सब पॉइंट्स तुम लोग लिखे होगे देन इट हेल्प यू टू सॉल्व द MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, सो दिस पॉइंट्स आर नॉट गिवन इन द बुक, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन राइट। अब देखो, इट इज क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर्स, दैट इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये मेन ये 3 रिवर्स हैं जिनसे आपके क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं। दैट इज वेस्ट पार्ट में इंदस है, सेंट्रल में गंगा एंड ईस्टर्न पार्ट में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। इज इट क्लियर? सो फर्स्टली यू कैन राइट इट, इट इज क्रिएटेड बाई 3 rivers and what was the name of the rivers? In western part में जो इसका एरिया पड़ा वो इंदस रिवर फ्लो हो रही है वहां। इज इट क्लियर? सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट है आपका, दिस इज गंगा रिवर। गंगा रिवर को होली रिवर भी कहा जाता है। एंड सेंट्रल पार्ट में गंगा रिवर है और ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ठीक। सो इट इज क्रिएटेड बाई 3 रिवर्स। नॉर्दर्न प्लेन्स इतने फर्टाइल है जिसका रीजन ये 3 रिवर्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में इंदस है। अब आप अपने मैप में आपको पता है वेस्टर्न किधर है, ईस्टर्न किधर है और सेंट्रल। ठीक है, अब देखो वेस्टर्न पार्ट में इंदस है, सेंट्रल में गंगा है और ईस्टर्न पार्ट्स में ब्रह्मपुत्र है। ये 3 रिवर्स ही मेन रीजन है नॉर्दर्न प्लेन्स के फर्टाइल होने के। ठीक है, अब देखो नाउ आफ्टर दिस, अब देखो कौन कौन से स्टेट से कवर कर रही हैं। ठीक है, तो इससे फिर तुम्हारे दिमाग में पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है। इज इट क्लियर? See, western part of the plains, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना तो इसलिए लिखा है। क्या लिखती है, western part of the plains was
formed by the Indus River. Is it clear? Western part of the plains was formed by the Indus River. Now the most important thing is and covers states of Punjab and Haryana. You want to note down, then you can note down these points in your rough copy. It will help you to understand the topic, because in the book it is given in very shortcut. So some extra point I have written on the board. So for your better understanding, you can note down these points as a notes in your rough copy also. In your rough copy, वेस्टर्न पार्ट देखो 3 पार्ट्स में नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड है. वेस्टर्न में है, सेंट्रल में है और ईस्टर्न में है. सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स वाज फॉर्म्ड बाय द, और मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स आर क्रिएटेड. ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे क्रिएट हुए हैं? ड्यू टू 3 रिवर्स, दैट इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन वाज फॉर्म्ड बाय द इंदस रिवर. ये इंदस रिवर के प्लेन्स हैं, ठीक है. एंड कवर्स स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ये किस में आएंगे आपके? कौन स्टेट इसने कवर की बेटा? पंजाब की स्टेट कवर की और हरियाणा की. आ रहा है समझ में? इट कवर द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. नाउ नोट डाउन. सेंट्रल में नोट कर लिया. सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन्स, सेंट्रल पार्ट of the plains, central part of the plains was formed, central part of the plains was formed by the Ganga river, and सेंट्रल पार्ट प्लेन वाज फॉर्म किससे हुए? गंगा रिवर से. एंड कवर्स स्टेट्स स्टेट ऑफ यूपी, दैट इज यूपी को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर प्रदेश. ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. Is it clear? Now see, western part of the plain was formed by the Indus River and covered states of Punjab and Haryana. ठीक है, पंजाब हरियाणा को कवर किया. अब सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्लेन्स was formed by the Ganga river and cover states of UP that is Uttar Pradesh, and our city Varanasi is also in Uttar Pradesh. So UP that is Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. ठीक है, तो अगर टोटल हम देखें तो अभी तक कितनी स्टेट्स कवर हो गई इन 2 रिवर से? दैट इज इंदस एंड गंगा. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
Bihar and West Bengal. Is it clear? Now, third part, which is covered by the river Brahmaputra. Now, note down. Eastern part of the plains. Eastern part of the plains was formed by the Brahmaputra river and covers the state of Assam. Is it clear? अब ईस्टर्न पार्ट का बात करें बेटा तो ईस्टर्न पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स. ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन्स वाज फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, एंड कवर्स द स्टेट ऑफ असम. ठीक है. सो थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन कर देते हैं. सो व्हाट आई टीच यू, इसकी एक रिकैप्चुलेशन कर देते हैं जिससे को आपको समझ में आ जाए. ठीक है. जब हमने बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की, सो इट इज क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स, इट इज क्रिएटेड बाय 3 रिवर्स. ठीक है. कितने रिवर्स से ये बना है, क्रिएट हुआ है? 3 रिवर्स. दैट इज इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है. सो ये तीनों ही रिवर्स क्या है, माउंटेन्स रिवर्स हैं. इज इट क्लियर? अब इस जब वेस्टर्न पार्ट, इसमें 3 पार्ट्स हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट. तो वेस्टर्न पार्ट को किसने कवर किया है? इंदस रिवर ने. वेस्टर्न पार्ट कैसे फॉर्म हुआ है? वेस्टर्न पार्ट इज फॉर्म बाय द इंदस रिवर एंड इट कवर द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. ठीक है. फिर आया सेंट्रल पार्ट. इट इज फॉर्म बाय रिवर गंगा एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. देन थर्ड ईस्टर्न पार्ट was formed by the Brahmaputra river and it covered the state of Assam. So अब टोटल कितनी स्टेट हो गई? वेस्टर्न पार्ट में 2 स्टेट, पंजाब हरियाणा. सेंट्रल में 3 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. एंड ईस्टर्न पार्ट में कौन स्टेट हो गई बेटा? असम. तो 2 + 3 5 + 1 6 स्टेट्स. ये आपके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स. ये आपके पूरे हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स. सो दिस थिंग इज नॉट गिवन द बुक, प्लीज नोट डाउन, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है बिल्कुल कि सेंट्रल पार्ट इज फॉर्म बाय विच रिवर. द नेम ऑफ द रिवर, 4 रिवर्स आर गिवन and you have to choose the right answer. Is it clear? Now see student, and even the temperature in the
northern plains region is very suitable for the crops. Okay, thank you student.